Malhar Events and Entertainment is presenting here, in association with Exclusive, all event requirements under one roof. This is for the first time in Agartala. We have several location partners with us. We are organizing wedding events. We are organizing decoration, catering, photography, videography, brass band, live music and all. We are also organizing birthday parties for theme decoration, catering, photography, videography and all. We are also arranging marriage anniversary party for decoration, catering, photography and videography. We are also managing corporate events. So for corporate conference, dinner, lunch, LED screen, we are taking care of. We are also organizing live music, unplugged music, orchestra, ghazal nights and all. We are also arranging fashion show. We organize fashion show event hunt for national level and state level. Malhar Musical Academy, we will have all the mentors for Malhar Academy. So we work as per the budget of the client and as per the satisfaction of the client. So book your events now on 9892348734 and 9862756997. Vamos setelah. ट्राइबल मिनिस्टर मेवात कुमार जी जमातिया यहाँ उनके साथ में है त्रिपुरा विधायक आदरणीय धनंजय जी। मैं उनको ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप मंच पर आसन ग्रहण कर इस मंच की शोभा। सबसे पहले सांस्कृतिक प्रस्तुति हेतु त्रिशुलिया की टीम को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आसाम के मौलाना सभा के जो सदस्य हैं और उनके अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंट गौरी राजीव राणा एवं दुर्लभ गोया, आप सभी से दोनों से निवेदन रहेगा। ओ भैया
साइड से लें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच में विराजमान है बंधु तिर्की जी, एमएलए झारखंड से। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। अगली कड़ी में भवनलाल जी परमार जो राजस्थान से हैं, हमारे मंत्री महोदय को भी ध्यान करें। भैया सब पीछे आ जाए ना। धन्यवाद जी को भी। ओ भैया जी भवनलाल जी परमार, डॉक्टर अनाबल मैनामी वाला और थोड़ा सा मंच में जगह दे तो अन्य सदस्यों को मंच पे भैया बुलाओ। जी थोड़ा पीछे आ थोड़ा जाए। सा फोटोग्राफ खाली कर दो। पीछे पीछे आ जाए, थोड़ा सा पीछे आ जाए। ये फोटोग्राफ थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा पीछे आ जाए। थोड़ा उधर है। हाँ, हमारे बीच में है महाराष्ट्र से डॉक्टर थोड़ा उठने के बाद बैठने से अच्छा होगा। आपला महाराष्ट्र में काय अरे अब तू कोण ओ भैया आगे मत जाइए ना। ओ भैया पीछे Thank you.
tongtokha chini salni program chinoro adibasi ekta porishod chin national level chinoro conference ka pray 16 ta state ni 16 state ni participate laikha chinjo north east UP ni Bihar ni Gujarat ni kong bro phaika an loga to chini national president chini Ashok Kaka bonin de trite sing oro difu Karibang longo salni program orang phai maja phaika tei gabang ma chini cultural troupe basanai ro phaika chin dipurane jeng 4ta group toi phaika tei gabang ma nin Haryana ni Gujarat ni Bihar ni Jharkhand ni gabang phaika tei oro chini national conference chini MLA Donald Deborah Tripura ma phaika tei chini Rajasthan ni MLA chini Rajkumar tei chini Madhya Jharkhand ni chini MLA tei nini Madhya Pradesh ni bang phai ma phaika aboni bagai chini belai khene ang sanam sugo oma hiseng chini indigenous people chini adibasi ni je India go price 8 to 9% tong uchu play 10 kuti ni hai tong chini population abro tei salaikha chini Tripura saro ni indigenous people ni je mathai sok thai abro chung salaikha tei biskango matma sung movement khainai sung ora program narkha chini November masago sung Jharkhand no chini national level sung kai seminar khainai abro chung salaikha abangai chini Tripura nangai bahaino ang maja phaika tei chini MLA Donald Tripura maja phaika tei kabang ma chini north east ni netarok maja phaika aboni bagai abaka chini kaisa umbrella kaisa foundation karak kha chini Tripura sani bagai ba chini indigenous people ni bagai all India level national level sung kaisa voice strong khainai no joto saimano sung obo sakha je sung Tripura nangai sung phaimani miapra meeting ko ang saka chini nahar mangka che IPF ni nahar mangkai chini statehood di mana chung nai tongo separate state no to chung nai tongo obo chini dabi obo chung saka tei kabang chini problem face kai tomani chini language culture chini economy education obo chung depriving tomani obo chung saka abo khagago omai ke chung joto miligei all India level chung miligei chung pressure khai kai obo ise chini Indian government obo chini khorang khananai obo chung salaika chung khoroksa kho dongi part khai dongi ya sung thanchak lagi chini voice rest ma khainai obar kok chalaike abagai tinoro Karibang difu salni oro national ni seminar abo manja phaike abangi angkha kago chini bagai bhaino chini Tripura bagai haino chini thinango belai ka hamangnai oba wanchogo ana chini belai khe ang especially chini media or kamangti media tongo ifetin Tripura chini khorang ni media tongo borna jotona hambai tei jotona ang thinang ni bai bhaino chini je orni je meeting mani borchung national level chini adibasi ekta porishod hoite khaijak mani obon tei jote focus on ungthung okok saino khain hajot tono chini media rona ani khakcham hambai ya far klumka इनका जो समारोह है इसमें किस मुद्दों को लेके मीटिंग चल रहा है बातें चल रही है मेरा नाम अशोक चौधरी आदिवासी समन्वय भारत का मैं समन्वयक हूँ ये आप जानते हैं कि इंडिजिनस पीपल आदिवासी जो लोग हैं उन लोगों की जो मूल समस्याएं हैं वो मूल समस्याएं उनके जो हैबिटाट्स हैं वो जहाँ रहते थे हजारों सालों से वहाँ से उन लोगों को अपरूट करके बाहर निकालने की मुख्य समस्या है। यह जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा संस्कृति भी ख़त्म हो जाता है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो धीरे धीरे करके एक ऐसी व्यवस्थाएं शुरू हुई आर्थिक, राजकीय, धार्मिक दुनिया में। पहले तो सब हम लोग एक ही थे, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं बनी उनसे हम लोग अलग अलग हो गए, देश में बट गए, धर्मों में बट गए, जातियों में बट गए हमारे देश में। ये सब चीज़ें हुई इसलिए 1992 में अर्थ समिट हुआ
रियो डी जानेरो ब्राज़ील में। वो अर्थ समिट में ये तो ऐसा था कि कोलंबस ने 1492 में अमेरिका खंड का शोध किया, तो उसको 500वीं सालगिरह के सेलिब्रेशन के लिए हुआ था। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि दुनिया में जो दो सभ्यताएं विकसित हुई, एक जिसको हम आज विकसित आधुनिक गिनते हैं वो, और जो पुराने समय से जो रह रहे थे लोग, इंडिजिनस लोग, तो एक सभ्यताओं में बड़ा अंतर आ गया। और इतना ही नहीं, लेकिन वो जो पुरानी सभ्यताएं थी, पुराने लोग थे, आदिवासी लोग थे, इंडिजिनस लोग थे, एबोरिजिन्स थे, ट्राइबल थे, अलग अलग शब्दों में हम लोग एड्रेस करते हैं, तो उन लोगों का शोषण हुआ। सिर्फ उन लोगों का शोषण नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति का भी शोषण हुआ, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जीने वाले लोग थे। इसलिए जब प्रकृति का शोषण होता है तो फिर हमारा भी ऑटोमेटिक शोषण हो जाता है। तो पानी गया, जंगल गया, ज़मीन गई, खनिज संपत्ति भी जा रही है। तो अपने ही देश में नहीं, लेकिन ये सारी संपत्तियाँ बाहर भी जा रही हैं। तो बाहर की कंपनियाँ भी यहाँ आके शोषण कर रही हैं। तो एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि शोषण करने की मानो एक होड़ लग गई है, और इसको हम लोगों ने मान्य कर लिया है कि शोषण करना वो बराबर है। तो इससे समस्याएं तो बहुत खड़ी हुई, क्लाइमेट चेंज की समस्या भी खड़ी हुई है। हम जानते हैं अभी मानसून, कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी सूखा पड़ जाता है, कभी भी चक्रवात आ जाते हैं। ये पूरा तूफान दुनिया में हो रहा है। प्रदूषित हवा हम लोगों ने कर दी है, पानी प्रदूषित कर दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ। तो अमर्याद जो शोषण प्रकृति का हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के प्रति जागरूकता समाज में आई, और सिर्फ आदिवासी समाज में ही नहीं, लेकिन गैर आदिवासी समाज में भी आई, जो शोषण करते हैं उनके बीच में भी आई। लेकिन शुरुआत हम लोगों ने हमारे लोगों से की है कि उन पर अभी इमीडिएट थ्रेट है, और जब एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का थ्रेट आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि आमने सामने लोग हो जाते हैं, एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, और वो घर तक आ जाता है संघर्ष। ऐसा नहीं है कि उनको जो नज़दीक दिखेगा उसके साथ संघर्ष करेंगे, या परिवार में भी संघर्ष, खाना नहीं होगा तो परिवार में ही संघर्ष हो जाएगा। तो एक ऐसी स्थिति में पूरा समाज आ गया है। तो समाज को जोड़ने का काम हम लोग कैसे कर सकें, ये संघर्षों में से समाज को कैसे बाहर निकाल सकें, समाज में ऐसी व्यवस्था हम कैसे पैदा कर सकें कि जहाँ कोई भूखा न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, किसी का सारवार के बिना मौत ना हो, दवाई के बिना मौत ना हो, खाना सबको मिले, सबको स्वतंत्रता का एहसास हो, विद डिग्निटी मिले, ये सब जो चीज़ें हैं वो सम्मान के साथ मिले। तो ये जो प्रयास है वो जो लोग छोड़ के गए हैं, जिन लोगों ने ऐसा प्रयास किया नया समाज बनाने का, जैसे अपने देश में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किताब 1909 में लिखा, तो एक नया समाज कैसा होगा, इंडस्ट्री कैसी होगी, उद्योग कैसे होंगे, व्यापार कैसा होगा, हमारी खेती कैसी होगी, ये सब चीज़ उन्होंने लिखी है। लेकिन उस पर तो हम लोग गए नहीं, हम लोगों ने बाहर का जो है, और जो उन लोगों ने लिखा है, चिंतकों ने लिखा है, वो बेसिकली आदिवासी लोग पहले से करते आए हैं। वो खाद का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो स्वावलंबी थे, वो आत्मनिर्भर थे। तो अभी हम लोगों को आत्मनिर्भर शब्द देना पड़ रहा है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भरता तो पहले से इस समाज में थी ही। तो ये जो आत्मनिर्भरता, आत्मस्वावलंबन, सेल्फ गवर्न यानी कि स्वशासन, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं पुराने आदिवासी समाज में थी ही। तो इसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, तो वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिससे दूसरे समाज को भी लगे कि ऐसे निपटारा हो सकता है समस्याओं का। हमारी ज़रूरतें हम लोग इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि फिर हम लोगों को प्रकृति और दूसरों का शोषण करना पड़ता है, और इसके लिए हम लोगों को फिर हिंसा करनी पड़ती है। तो राज्य खुद हिंसा पर उतर आया है अभी, ऐसी एक स्थिति निर्माण हो गई है। आज कितने राज्यों ने पार्टिसिपेट किया है आपका? ये 15-16 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया है।
तो ये चीज़ें हैं और मेरा परिचय मुझे दे देना चाहिए। 1924 में महात्मा गांधी मेरी माँ के घर आए और फ्रीडम स्ट्रगल यानी गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है। तो 1924 से मेरा जो परिवार है वो फ्रीडम स्ट्रगल में जो या वो तो पहले से जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी 24 में आए, 1903 से उन्होंने शुरू किया था। तो हमारी अगली 3 पीढ़ी फ्रीडम स्ट्रगल में जेल में गई है। ये हमारी चौथी पीढ़ी है। और मेरी माता जी ने कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी के पत्नी थे उनको यरौड़ा जेल में गुजराती लिखना पढ़ना सिखाया था। तो हम उस परिवार से हैं। तो समाज में सौहार्द कैसे बढ़े इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो समाज में से भी हिंसा जाए, राज्य को भी जो हिंसा करनी पड़ रही है वो ना करे, ऐसे एक व्यवस्थाएं हम लोग कायम कर सके, ये सब प्रयास है। और इसका माध्यम हम लोगों ने कल्चर लिया है, क्योंकि कला, संस्कृति, कल्चर ये हम लोगों को इंसान बनाता है। हमको मनुष्य बनाने की जो चीज़ है वो, या दूसरे शब्द में कहे तो वो हमको नेचर के साथ जोड़ता है। ये एक हार्मनी है। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल ये जो सेलिब्रेशन है वो आदिवासी समन्वय मंच भारत की ओर से जो यूनाइटेड नेशंस में आदिवासी अधिकार 2007 में घोषित किए 13 सितंबर 2007 को, उसकी कड़ी में ये सेलिब्रेशन रखा गया है। तो इस बार हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग इसमें जोड़ सके और ये माध्यम से हम लोग नेशन बिल्डिंग का काम भी कर सके। भारत का जो नेशन बिल्डिंग का काम है वो तो प्रोसेस थी, हम सब जानते हैं कि जब आज़ाद हुए तो नेशन बिल्डिंग का काम तो बाकी था, क्योंकि अनेक राज्यों में हम लोग तो बटे हुए थे, अनेक राजा थे, सब कुछ था। इसलिए नेशन ये एक तरीके से नेशन बिल्डिंग की ही प्रोसेस है। पीपल टू पीपल भी कैसे नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस आगे हम लोग ले जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল।